اٹلی میں اپلائی کرنے کے لیے اور ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ اپوائنٹمنٹ کا اٹلی کا بڑا شور ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جی ملتی نہیں، تو کیا آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر دیں گے اپوائنٹمنٹس؟ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کا کیسے بندوبست کریں؟ یعنی کہ اس میں کوئی ریفیوزل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے انٹل انلیس کہ اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے اس کی وہ ویریفیکیشن کر لے، ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ ایف سی پی ایس کی نئی انڈکشن پالیسی آئی ہے اور کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پہ ایم بی بی ایس گریجویٹس لڑ رہے ہیں آپس میں، فورن میڈیکل گریجویٹس اور لوکل گریجویٹس۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ اب ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ کیا ہے؟ کوئی بینیفٹ ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، کیا ہوا؟ چائنا اور اٹلی ایم بی بی ایس، ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ کون بادشاہ ہے؟ چیک ریپبلک یورپ کا ایک ہڈن جیم ہے، یہ میں نے سنا ہے آپ سے، تو کیا آپ کیوں کہیں گے کہ کیوں ہڈن ہے؟ اس کی کیا اسپیشلٹیز ہے؟ اٹلی میں اپلائی کرنے کے لیے اور ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ اپوائنٹمنٹ کا اٹلی کا بڑا شور ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جی ملتی نہیں، تو کیا آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر دیں گے اپوائنٹمنٹس؟ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کا کیسے بندوبست کریں؟ دیکھیں، جو اسٹوڈنٹ اٹلی کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا اپوائنٹمنٹ کو لے کر کنسرن ہوتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا بتائیں، اپوائنٹمنٹ کیا ملے گی نہیں ملے گی، یا کس طرح سے لینی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور کیا مطلب یہ واقعی مسئلہ ہے، یہ جنرل۔ تو ہم ان کو جو ہے نا اس کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اپوائنٹمنٹ کا مطلب میں ایک ایگزامپل سے دینا چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ اگر لیٹ سپوز ہم سنتے ہیں کہ جی پی کارز ہوتے ہیں، مطلب آپ روڈ پر نکلتے ہیں تو ایک پی کارز والا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا شام کو 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا پی کار ہوگا، ہر روڈ تقریباً جو ہے نا وہ ٹریفک سے جیم ہو جائے گی، اس میں اندر رش ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا مطلب آپ نے پیک آرز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسموتھلی چلے جائیں بغیر کسی ٹریفک جام کے، بغیر ٹائم ویسٹ کیے جلدی جلدی آپ پہنچ جائیں، تو آپ ان پیک آرز کو اوائڈ کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ سیم جو ہے یہ کیس سینیریو جو ہے اٹلی کی اپوائنٹمنٹس کا بھی ہے کہ اٹلی کی اپوائنٹمنٹس جو ہے نا ایک 6 منتھس کے لیے اوپن ہوتی ہے، تقریباً 30 مئی سے لے کے 30 نومبر تک کے ٹائم کے اندر اوپن ہوتی ہیں۔ یہ کچھ 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا مطلب اسٹوڈنٹس کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اگر ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اکتوبر نومبر میں جا کر جو اپوائنٹمنٹس لے گا، یا سپٹمبر اکتوبر میں اپوائنٹمنٹس کے لیے اپنے ڈاکومنٹس کو ریڈی کر کے بیٹھے گا، اور 70-80% اسٹوڈنٹس اگر اس ٹائم کے اندر جائیں گے تو الٹیمیٹلی ان کو بہت زیادہ رش ملے گا۔ ان لوگوں کو اپوائنٹمنٹ بالکل مل جاتی ہے جو سٹارٹ میں ہی اپنے ڈاکومنٹس کو پورا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو مطلب مئی کے اندر، جون کے اندر جنہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ٹرائی کرتے ان کو اپوائنٹمنٹ آسانی سے مل جاتی ہے، ایون کہ جولائی میں بھی مل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جا کے تھوڑا سا پیک آرز کا طرح کا ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے، مطلب جو ہے نا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا سلوشن یہی ہے کہ آپ نے جلدی ہی اپلائی کرنا ہے، ادروائز جو ہے نا پھر آپ کو اور آپشن لینے پڑیں گے۔ مطلب سم ٹائم پھر اسٹوڈنٹ جو ہے نا پیڈ اپوائنٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اور بھی ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جلدی اپلائی کریں، آپ کو آرگینکلی مل جائے گی اپوائنٹمنٹ۔ ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جتنی جلدی آپ اپنا پروسیس اسٹارٹ کریں گے، آپ اپوائنٹمنٹ والے پرابلم کے اندر جو ہے نا آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ ادروائز جو ہے نا پھر جو ہے آپ کو اگر جو ہے نا پی کارڈ ملیں گے، آپ کو رش ملے گا، اور آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ پھر دوسرے اور طریقے ہیں جو کہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیتے ہیں، جب وہ ان کا ٹائم آئے گا تو اس کو لے کر بھی اپوائنٹمنٹس لوگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس دفعہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اپوائنٹمنٹ ملی، ان کو ویزا بھی مل رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی آنے والے ابھی اسٹوڈنٹ کے سبمٹڈ بھی ہیں، اور کچھ سے بھی ان کے ڈیسیژن بھی آئیں گے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیڈ اپوائنٹمنٹس کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی لے لیتا ہے لیٹس سپوز؟ نہیں، اپوائنٹمنٹ تو اپوائنٹمنٹ ہی ہوگی، وہ پیڈ ہے، وہ اس کے اوپر لکھا تو نہیں ہوتا یہ پیڈ ہے یہ پیڈ نہیں ہے۔ اب پیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی جو ہے نا اور سورس سے لی ہے، مطلب خود سے بک نہیں کر سکا، اب کسی کو پیسے دے کے، یا کسی کے پاس آلریڈی تھی، یا کسی کا کوئی ریفرنس تھا جس کے ذریعے اس نے کسی کو پیسے دے کیے، یہ ہے پیڈ۔ ادروائز تو اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایسا کوئی مینشن نہیں ہوتا کہ یہ پیڈ ہے ان پیڈ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو جب آپ رش میں جائیں گے تو جیسے ایک مطلب ٹکٹ آپ کو بلیک میں مل رہی ہوتی ہے جب آپ رش میں جاتے ہیں، تو اگر ٹکٹ بلیک میں لے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چیز آپ کو مطلب اگر کوئی چیز بکنگ کروا کے لینی ہوتی ہے، تو جب تک وہ آرگینکلی
बुकिंग में होती है, अदरवाइज फिर आप फोन पे कर रहे होते हैं। ये वाला समय ले आपका जो है ना, इसी सेम क्राइटेरिया इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि जब आपको रश ज्यादा होगा तो देन अगर आपने कोई चीज लेनी है तो देन आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। यानी कि इसमें कोई रिफ्यूज़ल वगैरह का मसला नहीं, अनटिल अनलेस कि स्टूडेंट अपनी तरफ से उसकी वो वेरिफिकेशन कर ले, ठीक है, ओके है। देखो अपॉइंटमेंट जो है ना वो है जस्ट आपको एम्बेसी में अपीयर होने के लिए, उसका रिफ्यूजल से कोई तल्लुक नहीं होता। मतलब आपने अपीयर होना है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। वंस आप अपीयर हो गए तो देन जो डिसीजन है एम्बेसी के अंदर वो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होना है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होना है, वो आपके बाकी चीज़ों पे होना है। तो उसका अपॉइंटमेंट की पेड अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। एफसीपीएस की नई इंडक्शन पॉलिसी आई है और कुछ दिनों से इंटरनेट पे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स लड़ रहे हैं आपस में, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और लोकल ग्रेजुएट्स। तो आप क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स अब एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उसके लिए ये क्या है, कोई बेनिफिट है, कोई नुकसान हुआ है, क्या हुआ? देखिए जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक जो अब नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक अब जो एमबीबीएस जिसने किया हुआ आगे वो एफसीपीएस करना चाहता है तो उसको अब जो है ना कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगी। पहले उसको मैट्रिक इंटर के मार्क्स अगर उसके ज़्यादा होते थे तो उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, प्लस उसका जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ से उसने एमबीबीएस किया उसके ऊपर भी उसको एक्स्ट्रा जो है ना फेवर मिलती थी। तो अब ये दो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनको एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलेगी। अब चाहे उसने पाकिस्तान में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है या पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है जिसके अंदर किंग एडवर्ड वगैरह है, तो उसका कोई फर्क नहीं आएगा। जो एफसीपीएस के लिए जाएगा वो मतलब इस क्राइटेरिया से निकल के अपना टेस्ट जो है उसके ऊपर ही उसके मार्क्स जो है उसको आएंगे और उसी के अंदर फिर जो है ना वो आगे उसका प्रोसेस होगा। इसमें अब जो हमारे मतलब एमबीबीएस करके आते हैं स्टूडेंट्स, वो जो बाहर के कंट्री से करके आते हैं, मतलब रशियन स्टेट्स है वहाँ से करके आते हैं या कहीं और से करके आते हैं, उनको भी इक्वली जो है ना ट्रीट किया जाएगा। उनके लिए भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी, वो बल्कि फायदे में रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये अब जो पॉलिसी आई है इसमें हर स्टूडेंट को इक्वली मौका मिलेगा। जो एमबीबीएस का या उसकी प्रीवियस जो स्टडीज है उसका कोई इम्पैक्ट जो है ना आगे फ्यूचर की जो उसका टेस्ट है उसके ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो टेस्ट मौजूदा होगा जिसके अंदर अच्छा मार्क्स कोई लेगा उसी का उसको फायदा होगा, ना कि प्रीवियस जो है ना स्टडीज का उसको फायदा होगा। यानी कि एमबीबीएस इटली के लिए जाना चाहिए फिर स्टूडेंट्स को? देखिए एमबीबीएस इटली से करें चाहे किसी और से करें, जहाँ से भी वो करते हैं, वो जब आएंगे पाकिस्तान में वो अपना लाइसेंस लें, प्रैक्टिस करें। एफसीपीएस के अंदर उनको उन कंट्री की एजुकेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही अच्छा आएगा ना ही बुरा आएगा, वो उनकी प्रीवियस जो है ना वो स्टडीज हो जाएगी। तो एमबीबीएस इटली के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। वहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट फ्री स्टडीज़ हैं, इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं। एडमिशन ओपन है उसके। चाइना और इटली एमबीबीएस, इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे, कौन बादशाह है? देखिए आपने पूछा है कि जी चाइना से एमबीबीएस करें या इटली से एमबीबीएस करें। देखिए इटली एमबीबीएस के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टूडेंट्स यूरोप के अंदर कहीं पे भी सेटल हो सकता है, इटली के अंदर भी सेटल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी उनकी जो रिकग्निशन है वो बहुत अच्छी है। जबकि चाइना में फिर ये मसला आता है कि आप वहाँ पे उस लैंग्वेज में करोगे, जब आप करने जाओगे तब भी आपको फिर चाइनीज़ पहले सीखनी है और उसके बाद फिर आपने जो है ना फर्दर उसमें करना है। वहाँ पर जॉब के भी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यूरोप के अंदर आपकी सेटलमेंट भी उस तरह से नहीं हो सकती। तो नो डाउट मतलब आप करने को तो एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन उसकी अगर मतलब बेनिफिट्स जो है ना वो इटली एमबीबीएस की निस्बत जो है ना वो कम ही है। तो इसलिए अगर आप बाहर जाकर एमबीबीएस करने का सोच चुके हैं तो मुझे मतलब इसके अंदर आप चाहे इटली को भी देख लें, इटली में भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा हैं। चेक रिपब्लिक यूरोप का एक हिडन जेम है, ये मैंने सुना है आपसे। तो क्या आप क्यों कहेंगे कि क्यों हिडन है, इसकी क्या स्पेशलिटीज है? देखिए चेक रिपब्लिक जो है यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है और इतना ज़्यादा मतलब उसके बारे में लोग नहीं जानते। स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड जो लोग हैं ना, मतलब जो काम कर रही हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मतलब पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं, वो ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज़ को प्रमोट करती हैं जहाँ पर उनको मिलता है मतलब कमीशन मिलते हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, इस तरह से कनाडा की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस देते हैं। तो इनमें काम करने का जो है ना मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट को वहाँ भेज दिया तो उसके बाद
अच्छा सा खासा हैंडसम किस्म का डॉलर्स के अंदर जो है ना उनको कमीशन जो है उनके अकाउंट में आ रहा होता है, और इवन के 30-40% उसकी जो इनिशियल फीस होती है उसका हिस्सा जो है, शेयर जो है ना वो इन लोगों को मिल रहा होता है। तो जबकि यूरोप के अंदर ये होता है कि यूरोप में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, और हम भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं, तो हमें उस तरह का नहीं होता कि जी हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा, लेकिन स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा है। स्टूडेंट को मतलब इटली में अप्लाई करने में उसका 3 से 4 लाख का एक्सपेंस हो रहा है, अगर वो ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर रहा है तो 6-7 लाख का एक्सपेंस हो रहा है। मतलब 6-7 लाख जो उसके अंदर उसने ये सारा एक्सपेंस अपने हाथों से करना है, वो हमें नहीं देना, मतलब उसने अपने हाथों से सारा प्रोसेस करना है और उसका ये प्रोसेस जो है ना उसका एक्सपेंस होना है। इसी तरह से चेक रिपब्लिक में भी 10 से 12 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट है, जिसके अंदर हमारी फीस तो उसकी मतलब जो है ना आप ये कह लें कि ना होने के बराबर होती है। बाकी उसकी फीसिस हैं, यूनिवर्सिटी की है, एम्बेसी की है या बाकी कॉस्ट है, तो ये इसके अंदर कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए बाकी लोग नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट को फ़ायदा है, मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट का इसमें मसला नहीं है। अपॉइंटमेंट हर महीने ओपन होती है, आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, आपकी इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होती है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके बाद इसकी यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन दे देती हैं। आप इसके अंदर जो है ना इंटर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पर इंग्लिश टॉट सब्जेक्ट्स भी हैं। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट वाइज भी बेनिफिट्स हैं, और इसके बाद वहाँ पर जो है ना हमारी जो डिग्रीज हैं, हमारी जो 2+2 की डिग्रीज है प्लस इंटर के स्टूडेंट है, ये सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ना वहाँ पर आपको यूरोप मिल जाता है, शेंजन मिल जाता है, वहाँ पर जाकर भी 40 घंटे एक वीक के अंदर चेक रिपब्लिक जो है वो काम करने की इजाज़त भी दे रहा है, और अर्निंग भी यूरोप के मुताबिक ही है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको चेक रिपब्लिक में मिलते हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपने ऑस्ट्रिया का ज़िक्र किया, ऑस्ट्रिया में भी बड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने सुना है ऑस्ट्रिया अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो दिन ब दिन हाई करता जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा है और क्यों है? देखिए ऑस्ट्रिया जब हमने ऑस्ट्रिया को स्टार्ट किया था आज से काफ़ी साल पहले, तो ऑस्ट्रिया इतनी सख्त रिक्वायरमेंट नहीं थी। 50% उसकी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना 50% के ऊपर एडमिशन दे देती थी, और अब भी कोई तकरीबन 12 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 50% ही मार्क्स जो है ना डिमांड करती हैं। अगर आपका 2 CGPA है या 50% मार्क्स हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो है मतलब सिर्फ मास्टर डिग्री जिसने बैचलर 4 ईयर किया हुआ है उसको ये वाली ऑप्शन है, अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी ने इंटर किया हुआ है तो उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी 80% है, और उसको जो है ना उन्होंने बढ़ा दिया है। अब आपके क्वेश्चन के क्यों बढ़ा दिया है, क्या वजह है इसमें? देखें, उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, आपकी कॉस्ट बहुत थोड़ी है वहाँ पर, मतलब 6-7 लाख रुपए मैक्सिमम लगते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। वीज़ा रेशो उनकी मोर देन 95% है, मतलब हमने जितने भी स्टूडेंट्स का अप्लाई किया, किसी का कोई वीज़ा रिफ्यूजल नहीं हुई। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगती भी है तो वो भी आप ऑब्जेक्शन को रिमूव कर दें, आपका वीज़ा जो है ना उसमें लग जाता है। और इसके अलावा प्रोसेस उनका थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर है, अदरवाइज़ जो है ना वो वीज़ा दे देते हैं। स्टूडेंट्स जितने भी अप्लाई करते हैं उनको वीज़ा मिल जाता है, कॉस्ट थोड़ी है। तो इस वजह से अब शायद वो सोच रहे होंगे कि अब हम थोड़े से अच्छे और स्टूडेंट्स को लेकर आएँ, क्योंकि हमने वीज़ा तो देना ही देना है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं। तो स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी परसेंटेज हो वो आए हमारे पास, ना कि जो है ना बहुत थोड़े परसेंटेज वाले स्टूडेंट जो है ना वो वहाँ पर चले जाए। इसलिए वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा टाइट करते जा रहे हैं, अपनी परसेंटेज बढ़ाई है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, जो है ना आर्ट्स को कंपलसरी कर दिया है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अदरवाइज जो है ना अगर आर्ट्स भी इतना मुश्किल नहीं है, अगर एक बंदा पढ़ने के लिए प्लान करके बैठा हुआ है तो वो आर्ट्स कर सकता है। और अगर कोई किसी ने बाहर जाने के लिए पढ़ना है और अभी वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, 4 ईयर डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो उसको अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस भी रखना चाहिए, ताकि अपनी उसकी परसेंटेज अच्छी आए। अगर वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में उसको अगर कोर्स मिलेगा जिसका रिक्वायरमेंट 3.0 CGPA से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसको वो भी फुलफिल कर लेनी चाहिए। अभी अपने आप को वो बेहतर कर ले, अपने आप को इम्प्रूव कर ले, ताकि आने वाले दिनों में जब वो अप्लाई करे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे क्वेश्चंस थे। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, चाहे जैसे भी हैं, जितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कमेंट्स में पूछें, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। वहाँ कमेंट्स में नहीं तो सर तनवीर के साथ यहाँ पे होंगे। ठीक है? जी, बिल्कुल, वालेकुम ठीक हो गया। आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी आएँगे शो उनको हम जो है ना इसी तरह से शामिल करेंगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।